بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی محمد احسان الحق عاجز قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہچان جڑاں والا۔ آج ہم جڑاں والا کی جو پہچان آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، میرے مراد جناب محمد اویس علی حسینی صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ جڑاں والا کا ایک نامور نعت خوان، ایک اچھا نقیب جناب اویس علی حسینی صاحب ماشاءاللہ اگر نعت میں دیکھیں تو بہت اچھی آواز رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی آواز رکھتے ہیں۔ اور ان کی جو خاص بات ہے وہ یہ میں نے دیکھی ہے کہ یہ اپنے سینئرز کا بڑا احترام کیا کرتے ہیں، یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اویس علی حسینی صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پہچان جڑاں والا کے لیے، آپ نے ہمیں ٹائم سے نوازا۔ تو میں اور میرے ناظرین ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ بڑی چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ کہہ لیں کہ جڑاں والا میں ایک بہت اچھا نام بنانے میں، پہچان بنانے میں آپ کامیاب ہوئے۔ آپ نے نعت خوانی کا آغاز کس سن سے کیا اور کس کے پاس سے کیا؟ جی، پہلے تو میں آپ سب ناظرین کو اور احسان بھی آپ کو ملکیت حق گرامیوں کے ساتھ خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ مجھے اپنی پہچان جڑاں والا میں مخاطب فرمایا۔ اور سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ احسان بھائی، مجھے الحمدللہ بچپن سے ہی ثنا خوانی کا بڑا شوق تھا۔ میرے والد گرامی حضور کے ثنا خوان کو سنتے ہوتے تھے، اور میری ماں کی دعا تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک پھول جو ہے ایسا نوازے جو حضور کا ذکر جو ہے وہ ہمارے گھر سے، جو روشنی جو ہے ہمارے گھر سے بھی ہو۔ پھر ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو الحمدللہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک پھول دیا، اور آج الحمدللہ میں خود بذات سرکار کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے لیے ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضروری، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور آپ جیسے میرے دوست ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں سے میں نے یہ ثنا خوانی سیکھی، اور وہ میرے استاد محترم حافظ محمد علی رضا قادری صاحب ہیں، اور ان کی بڑی محبتیں، ان کی شفقتیں میرے سر پہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دن جگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ آپ شہر میں محفلیں بھی بڑی مینج کیا کرتے ہیں، تو اس طرف کیسے آنا ہوا کہ چلو یار جگہ جگہ محفلیں جو ہے انعقاد پذیر کی جائیں؟ وہ آپ کی اپنی طرف سے ہوتی ہیں یا پھر یہ آپ لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ یار آپ کے گھر میں یا آپ کی دکان پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہونا چاہیے؟ جب بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو لوگ سنا کرتے تھے، اور ہر انسان کی دل میں خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں ذکر ہو۔ تو جب انہوں نے سننا تو پھر دعوت دینی کہ بھائی ہمارے گھر پہ محفل ہے تو آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ سنتے گئے، جب حضور کا ذکر سننا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ تو جب اس ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا تو یہ زبانیں پھر الحمدللہ ان کا ذکر کر رہی ہیں، اور آج الحمدللہ جڑاں والے میں نہیں، پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ سرکار کا ذکر جو ہے الحمدللہ اس زبان سے ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ پاکستان کے تقریباً منیمم کتنے شہروں میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کر چکے ہیں؟ یہ تو احسان بھائی الحمدللہ جڑاں والا کا بس تک کوئی علاقہ ہوگا جہاں پہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں الحمدللہ پورے پاکستان میں الحمدللہ جا رہا ہوں۔ اور یہ ذکر ایسا ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا جو دور ہے، تو یہ آواز پورے پاکستان میں نہیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ماشاءاللہ جا رہی ہے۔ سٹی 41 پر آپ کی میں نے ایک نعت دیکھی تھی، تو غالباً وہ کوئی مقابلہ ہوا تھا، اس میں شرکت کی تھی یا پھر رمضان ٹرانسمیشن میں جانے کا اتفاق ہوا؟ جی، مجھے سٹی 41 کی طرف سے بلایا گیا تھا، تو ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں نے پڑھا تھا۔ تو یہ غالباً 27 رمضان تھی، تو 27 رمضان کو میں نے وہاں پہ پڑھا۔ اچھا ویسے بھائی، جڑاں والا میں بہت نام ہے ثنا خوانی کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کا حوالہ ہو تو جڑاں والا ہمیں بہت آگے نظر آتا ہے کہ محفلیں کروانے میں۔ اچھا، پھر نعت خوانوں میں اگر دیکھا جائے
تو कासिम हसन साहब हैं, साजिद अली चिश्ती साहब हैं और दीगर दोस्त बहुत सारे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दो नाम मुझे बहुत ऊपर नज़र आते हैं लिस्ट में। तो जनावाला में अपने उस्ताद मोहतरम से जनाब हाफिज़ अली रज़ा कादरी साहब के बाद या उनसे भी कोई पहले आप किसको समझते हैं कि यार ये सना खान बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं? मेरी चॉइस तो जो मैंने बता दिया कि कासिम हसन साहब और साजिद अली चिश्ती। आप अपने बारे में बताइए कि आप किन को ज़्यादा लाइक करते हैं? जी, सबसे पहली बात ये है कि कासिम हसन साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जड़ा वाले की पहचान है। साजिद अली चिश्ती साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जड़ा वाले की पहचान है। लेकिन जब मैं बचपन से पढ़ रहा था तो ज़ाहिर बात है कि मैं अवैस भाई को बहुत सुनता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे वो जो उनकी रहनुमाई थी तो हासिल, जो ज़ाहिर बात है मीडिया से हासिल होती थी, उनको जहाँ पाकिस्तान में सुनना, तो जिस जगह आना वहाँ पे जाके सुनना। लेकिन मैंने फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे उस्ताद मोहतरम जो थे मेरे हाफिज़ अली रज़ा कादरी साहब, जो उनकी खुशबू थी वो मुझे पाकिस्तान में किसी सना खान में नज़र नहीं आई। तो ग़الباً मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नात ख़ानी का जो स्टार्ट जो है वो हाफिज़ अली रज़ा कादरी साहब से किया था। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शकीर हूँ और उनकी ये बड़ी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बतें हैं कि उन्होंने मुझे ये सना खानी का जो शौक़ जो था मेरा और मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह फरमा दिया। लेकिन मेरा सवाल फिर यहीं पे रहा कि हाफिज़ अली रज़ा साहब के बाद आप जनावाला में किसको देखते हैं? अगर देखा जाए बड़े से ऐसे सना खान हैं जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जड़ावाला में उजागर हो रहे हैं, जो सरकार का ज़िक्र लेकर चले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला उनको रिश्ते अता फरमाए। अली भाई के बाद अगर देखा जाए वो जो पहचान है, वो जो नात का सिलसिला जो लेकर चल रहे हैं, उनमें बड़े नात खानों का नाम आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये कि हाफिज़ अली रज़ा कादरी साहब ने जो जितनी मेहनत की है, आज उनकी मेहनत आपके सामने है। ठीक है, और कासिम भाई के हवाले से बात करता हूँ या साजिद अली चिश्ती साहब से बात करता हूँ, तो ये तो फिर ज़ाहिर बात है एक बड़ा प्लेटफॉर्म आ जाता है। तो अगर सना खानी का सिलसिला जो जहाँ से चल रहा है वो ये दो दो फूल हैं, और उन दो फूलों में जो तीसरा फूल वो ये है कि जो मैंने आपसे फरमाया कि हाफिज़ अली रज़ा कादरी। माशाल्लाह। अच्छा, वैसे देखा जाता है कि चूँकि हमारा प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखेंगे भी, और मैंने देखा है कि मिसाल के तौर पर मेरी उम्र इस वक्त 43 है, और आप मेरा ख्याल है कि अभी 20 से ऊपर 25 तक 27 होंगे। जी, जी 27 27। अच्छा, अब मैंने ये देखा है कि मिसाल के तौर पे मेरी उम्र 43 साल है, तो मेरा दोस्त अक्सर मैं जिसके साथ घूम रहा हूँ, ये मिसाल पेश कर रहा हूँ कि मैं जिसके साथ घूमता हूँ, उठता बैठता हूँ, उसको लेके फिर रहा हूँ, वो 16-17 साल का है। ये मैंने नात खानों पे अक्सर देखा है। ये क्या एक इफेक्ट है कि ये हमें ऐसा देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि ऐसा एक मायूबी लगता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक शागिर्द थे, तो वो एक खूबसूरत लड़का था, उसके साथ बाज़ार में जा रहे थे, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी गज़बनाक नज़र से अपने शागिर्द को देखा। तो शागिर्द भी ज़ाहिर है कि इमाम आज़म के थे। वो जल्दी से आगे बढ़े और फरमाया, हुज़ूर मेरा भांजा है। फरमाया, तुझे पता है कि तेरा भांजा है, लोगों को नहीं पता। तो ये कि लोगों की नज़रें कैसे उठती हैं, इसका हमें देखना चाहिए। एक तो ये है कि ऐसे हमने अक्सर देखा। दूसरा, हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि अक्सर नात खान चौकों में बैठे पान खा रहे होते हैं। अब पान खाना शायद मैं इसलिए कहूँगा, नहीं मायूब कहूँगा कि सैयदी आला हज़रत भी पान खाते थे। तो ये चीज़ें जो हैं इस वक्त बाज़ारी माहौल जो है हमें बाज़ सना खानों में नज़र आता है। आप इनके बारे में क्या कहते हैं? जी एहसान भाई, मैं सबसे पहले तो बात ये है कि आपका जो सवाल है बच्चों के हवाले के साथ जो खूबसूरत है, देखिए अल्लाह का हुस्न जो है वो हर इंसान को दिया हुआ है। किसी को खूबसूरती चेहरा दिया हुआ है, किसी को दिल खूबसूरत दिया हुआ है। आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारा दौर जो माशरा है वो नेगेटिव की तरफ बहुत जा रहा है। ठीक है, और लेकिन ये हजूर का जिक्र है कि इस दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम आला हज़रत की बदौलत से अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया पे सरकार का जिक्र चल रहा है। अल्लामा इकबाल साहब को देख लिया जाए, अल्लामा इकबाल साहब के शेरों को देख लिया जाए, आपकी शायरी को देख लिया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में सरकार का जिक्र उजागर हो रहा है।
ठीक है, दिन ब दिन सरकार का जिक्र बढ़ रहा है, लेकिन बाज़ारों में जो लोग बैठते हैं, पान खाते हैं, या गुफ्तगू जो उनकी ऐसी होती है, ये उनकी तरबियत होती है। ठीक है, जब किसी उस्ताद के पास इंसान जाता है कोई शागिर्द होने के लिए, तो वो उस्ताद का हुक्म होता है कि उसको उसकी रहनुमाई अच्छी करे। ठीक है, आज के दौर में अगर उस्ताद अच्छा मिल जाता है तो शागिर्द अच्छा नहीं मिलता, अगर शागिर्द अच्छा मिलता है तो उस्ताद तो अच्छा होता ही है। लेकिन अगर दोनों कंपैरिजन किया जाए तो एक एक बीज से जो है वो बाग नशनुमा जो हो जाता है, बाग यानी रोशन हो जाता है। तो हमें चाहिए कि आज के दौर में अगर ऐसा वक्त है, हम पे आ चुका है या हम पे आने वाला है, तो हम सरकार का जिक्र लेकर चलें, और सरकार का जिक्र को ही लेकर हम दुनिया पे रोशनाई जो है फैला सकते हैं। तो मेरी तो यही राय है कि मैं जितने नाजरीन देख रहे हैं, किसान भाई के सवाल के मुताबिक मैं यही कहूँगा कि आप भी सरकार के जिक्र से अपने दिलों को मुनव्वर फरमाएं और अपने माहौल को चेंज फरमाएं। वैसे बाज़ हम मशाइख को देखते हैं, पीर हजरात को देखते हैं, स्टेज पर हम बहुत शौक से बिठाते हैं, जिस शख्स के नाम के साथ पीर आ जाए हम उनको सर आंखों पे बिठाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ पीर जो होते हैं वो दाढ़ी जी साफ़ होती है, बाज़ हम पीरों को देखते हैं नमाज भी नहीं पढ़ते, एलानिया ये कहने के गुनाह है। तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? किसान भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार ने फरमाया है कि दाढ़ी जो है इस्लाम के अंदर जो है वो दाढ़ी ज़रूरी है। और बेशतर लोग पीरान उज़ाम ये भी कहते हैं कि दाढ़ी के अंदर सलाम, इस्लाम के अंदर दाढ़ी ज़रूर है लेकिन दाढ़ी के अंदर सलाम नहीं है। लेकिन देखें कि अगर आप ये माशाल्लाह चेहरे पे जो दाढ़ी है सुनते रसूल है, अगर आप रखेंगे, इससे अल्लाह तबारक ताला ने बड़े से राज जो हैं वो छुपाए हुए हैं, लोगों के ऐब छुपाए हुए हैं। ये खूबसूरती की सबसे बड़ी निशानी है कि मेरे सरकार की सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा कि जो पीराने उज़ाम ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना जो नहीं चाहिए, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि सबसे बड़े जो पीर हमारे हैं वो सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इससे बढ़कर कोई पीर नहीं है। तो दाढ़ी को रखना सुनते रसूल है। और सभी नाजरीन जो देख रहे हैं, मैं भी आपसे यही इल्तिजा फरमाऊँगा कि सरकार की सुन्नत को अपनाएं और अपनी इस्लाम में दूसरों की खिदमत करें। और ये यहाँ पर मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये भी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा चेहरा दाढ़ी वाला, तमाम सहाबा का चेहरा दाढ़ी वाला, जी तमाम ताबईन तबा ताबईन उनके चेहरे दाढ़ियों वाले। और फिर कहते हैं जी कि हमारे दिल की नमाज है, अगर दिल की नमाज होती तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सबसे किसी बड़ी की ना होती। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद उनके बाद सहाबा किराम दिल की नमाज पढ़ते, तबा ताबईन पढ़ते। जब उन्होंने दिल की नमाज नहीं पढ़ी तो ये आज का कुत्ता उठ के कहे कि जनाब हमारे दिल की नमाज है, मैं तो कुत्ता ही कहूँगा इन लोगों को कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है उसको कहें कि हमारे दिल की नमाज है। तो ये कुत्ते ही हैं, नमाज का जो इनकार करते हैं, नमाज से रोकते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं जी हम नमाजें पढ़ी हुई हैं तो हम इनको पीर तो नहीं कहेंगे। बल्कि ये है कि आपने संभल कर जवाब दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चलकर इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा अवैस भाई, ये है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अहले सुन्नत से ऐसे लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जिनके दिल की नमाज़ें होती हैं जो दाढ़ी के बगैर होती हैं, क्योंकि सैयद दाता अली हजवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई मुंह से आग उगलता हो, हवा में उड़ता हो, पानी पर चलता हो, हम उसको वली नहीं मानेंगे अगर वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत का भी तारिक है। और एक वाक़या और कि सैयद दाता अली हजवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक मुरीद आया, काफ़ी अरसा खिदमत करता रहा। एक दिन बोरिया बिस्तर उठाया तो चल पड़ा। दादा साहब ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहता जी मैं जा रहा हूँ बस आपके पास, मैंने कोई करामत तो देखी नहीं आपकी, आप अल्लाह के वली हैं कहते हैं लेकिन मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। आपने फरमाया ये तो बता कि कभी मुझे खिलाफ सुन्नत काम करते हुए देखा? कहने लगा नहीं। फरमाया इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है। और सैयदी आला दाता अली हजवरी रहमतुल्लाहि ताला के बारे में आता है कि आपने सारी उम्र ककड़ी यानी तर ये नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? आप फरमाते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि ये इसका सुन्नत तरीका क्या है खाने का, जिस दिन मुझे पता चलेगा उस दिन मैं खाऊंगा। वली ऐसे होते हैं, और ये वली पता नहीं कैसे होते हैं कि जो जनाब नमाजें भी गौर। तो ये अच्छा अवैस भाई, हम अपने वापस मौजू की तरफ आते हैं, आपकी तरफ। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। आप एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, नूर रहमत
رحمت نور. جی تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہہ لیں کہ آج کہ ہم اس پروگرام میں اس پروگرام کی تھوڑی سی تشہیر بھی کر لیتے ہیں. جی وہ کیا سلسلہ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ احسان بھائی، یہ رحمت نور جو پروگرام ہے، میری زندگی میں ایک خواہش تھی اور اس پروگرام کو میں لے کر چلوں، اور الحمدللہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں اس پروگرام کو الحمدللہ یہ پاکستان میں انشاءاللہ چلاؤں گا، اور آپ سبھی دوستوں کی محبتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک جو پھول ہے وہ گلدستے کے ساتھ جو ہے وہ اور خوبصورت ہوتا ہے، اور آپ سبھی جو ہیں اس میں شامل ہوں گے، اور اس پروگرام کو ان میں جو علم ہے، آج علم زیادہ ہو چکا ہے لیکن اس کی تاثیر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ پڑھ چکے ہیں، علم حاصل کر چکے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو ہے وہ احساس جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اس پروگرام میں سب سے پہلے ضروری بات یہ ہوگی کہ علم تو ہم نے حاصل کیا ہے، لیکن لوگوں کے لیے جو خدمت ہے، جو سرکار نے ہمیں فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کو لے کر چلو، وہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نے اس پروگرام میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمانی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پروگرام میں بھی انوائٹ ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس پروگرام کو پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ جو ہے وہ رہنمائی جو ہے اسے لوگوں کو دیں انشاءاللہ. اچھا، وہ مجھے دلوں میں محبت پیدا کرنے سے یاد آیا کہ ہمارے شعبے میں ایک یہ بھی چیز بڑی پائی نہیں جاتی کہ مثال کے طور پہ ہم اپنی مثال دے دیتے ہیں کہ میں اور آپ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ادھر سے دو نعت خان اور آ گئے تو ہم آپس میں یہ کتوں آ گئے جناب. ہمیں یہ بھی نہیں پایا جاتا یہ زیادہ کہ جلسی پن ایک عجیب سا اس کی میں یہ میری فیلنگ ہے. یہ واقعی ایسا ہے؟ احسان بھائی، جس انسان کا ظرف جو کم ہوگا وہ یہ بات سوچے گا. اللہ نے جس انسان کو ظرف جو زیادہ دیا ہے، جس کا ظرف بڑا ہے، تو مولا کائنات کا ایک قول ہے کہ عزت والا انسان ہی کسی انسان کو عزت دے سکتا ہے. معذرت کے ساتھ یہ حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عزت والا ہی دوسرے کو عزت دیتا ہے. لیکن یہ حدیث بھی ہے ماشاءاللہ، اور لیکن میرے قول کے مطابق یعنی کہ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پوری حدیث بیان کر دیتا ہوں میرے ناظرین کے لیے کہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے. ادھر سے مولا علی تشریف لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر، لوگ کہتے ہیں کہ ان میں اختلافات تھے، یہ لڑتے تھے، یہ جھگڑتے تھے، لیکن یہ حدیث اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. یہ حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر تھوڑا سا سرک گئے، سائڈ پہ ہو کر فرمایا علی یہاں بیٹھیے. اپنے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جگہ بنا کر وہاں پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا. علی بیٹھ گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. جب دونوں حضرات بیٹھ گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عزت والا ہی دوسرے کو عزت دیتا ہے، عزت والا ہی دوسرے کو عزت دیتا ہے. آج اگر کوئی دیکھ کر آپ کو منہ بسورتا ہے، اگر وہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، دینے کے لیے یہی ہے. وہ ہے ہی وہ اتنی اوقات کا مالک کہ جو وہ آپ کو دکھا رہا ہے. تو اس سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس بیچارے کے پاس ہے ہی ایسا. لیکن ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو عزت دیا کریں گے. آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ نیت کر لیں کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو عزت دیا کریں گے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں. ہم انشاءاللہ ان کو عزت دیں گے، ہم ان کو عزت دیں گے، اللہ ہماری عزت میں اضافہ کرے گا. اویس بھائی، آپ بیعت کہاں پر ہیں؟ کون صاحب سے آپ بیعت ہیں؟ جی، میں الحمدللہ میرے شیخ حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور سن شفاقت علی ہاشمی صاحب ہیں ہمارے جڑا والا میں ان کے ہی الحمدللہ بیعت ہوں. یہ کہاں سے ان کا تعلق ہے، کون سا آستانہ؟ ان کا تعلق یہ ہے کہ میرے دادا مرشد جو ہیں وہ حافظ محمد عیسیٰ قادری صاحب ہیں، مرولہ شریف آستانہ ہے. اور الحمدللہ یہ جڑاوالا میں پیر صاحب کا نام جو ہے حضور پیر سن شفاقت علی ہاشمی صاحب، ان کا حسین شوگر مل میں یہ رہائشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ آستانہ عالیہ مرولہ شریف بڑا نام ہے، بڑا زبردست نام ہے. جی اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں پیر عبدالحکیم، سید پیر عبدالحکیم صاحب لشاریاں والے، تو
ये पिछले जुमे मैं वहाँ पर दरबार शरीफ पर हाज़िर हुआ था और वहाँ पर मैंने जो अपनी डॉक्यूमेंट्री थी वो तैयार की थी, मैंने यूट्यूब पर रख दी है अल्लाह वाले के नाम से। नाज़रीन वो डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप अल्लाह वाले टाइप कीजिए और ये जो सैयद अब्दुल हकीम शाह साहब हैं, मरुल्ला शरीफ वाले पीर साहब के भी पीर साहब हैं। ये तकरीबन 300 साल पुरानी ये गद्दी है। आप इनको इनका आस्थाना ज़रूर देखिए, इनके बारे में ज़रूर जानिए। पीर शफ़ाकत अली साहब से मेरी बारहा मुलाकात हुई है। मैंने ये सवाल आपसे अपने नाज़रीन के लिए किया था, पीर शफ़ाकत साहब से कैसे आप इंस्पायर हुए? मैंने ये चंद साल पहले ही देखा कि आप उस तरफ माइल हुए थे, तो इससे पहले आप ज़ाहिर के बैत नहीं थे। इनकी तरफ आप कैसे माइल हुए? क्या चीज़ आपको खींच कर ले गई? सबसे बड़ी बात यही है कि एहसान भाई, हर इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने उनके दिल में जो है मोहब्बत पैदा की है। कोई भी इंसान किसी को अगर अपनी तरफ माइल करता है, उसमें दो चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं। एक इंसान का इखलाक अच्छा होता है और एक बात ये होती है उसकी सीरत अच्छी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये दोनों जो बातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें देखी, और सबसे बड़ी तो वही चीज़ आ जाती है कि आपसे मैंने पहले कहा था कि इज़्ज़त वाला इंसान ही किसी को इज़्ज़त दे सकता है। और ये आस्ताना ऐसा है कि यहाँ पे मसलक के हवाले से या मज़हब के हवाले से कोई इंसान भी आ जाए, आपको ये दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। और ये दो चीज़ें देख के अल्हम्दुलिल्लाह, और हजूर का ज़िक्र जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे होता है। कोई भी आ जाए उनका ज़िक्र जो है वो ज़रूर करते हैं। और आस्ताना वही कामयाब है जहाँ पे हजूर का ज़िक्र हो और अल्लाह का ज़िक्र हो। और जिस आस्ताने पे खुदा का ज़िक्र नहीं होता, खुदा के नबी का ज़िक्र नहीं होता, वो कोई आस्ताना नहीं। तो पीर नसीरुद्दीन साहब ने कहा था ना कि खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, अरे बिला वजह नहीं मरता यहाँ कोई किसी पर, हम पे कोई मरता है तो फिर कुछ हम हम में कुछ है। तो यही बात फिर आपको वो पीर शफ़ाकत अली साहब की तरफ खींच कर लेगी यकीनन। अच्छा, मैं आखिरी सवाल की तरफ जाने से पहले कहने के सेकंड लास्ट सवाल करना चाहूँगा। दावत इस्लामी आलमगीर तहरीक है, दावत इस्लामी के अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मेरे पीरो मुर्शिद, आप किसी से ढकी छुपी शख्सियत नहीं है। आप दावत इस्लामी को, अमीर दावत इस्लामी को आप किस अंदाज से देखते हैं, कैसे देखते हैं? जी मैं एहसान भाई, ये बात जो प्रोग्राम जो है ना, रहमत नूर जो प्रोग्राम है, ये देखिए कि दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया पे अल्हम्दुलिल्लाह सभी इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत भी कर रहे हैं। एहसास का प्रोग्राम जो है, उनके दिलों में मोहब्बत इंसानियत जो है, वो सबसे पहले ज़रूरी है कि मोहब्बत इंसानियत उन्होंने सबसे पहले रखा हुआ है। और दूसरी खिदमत उनके लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मसल के आला हज़रत को लेके चले हैं। और दूसरी ये भी खिदमत उनकी ये है कि कोई उनके दर पे आ गया तो वो खाली नहीं जाता। सबसे बड़ी खिदमत जो वो कर रहे हैं वो ये है कि आज के दौर में ये कोरोना वायरस एक वबा फैली हुई है, और जो दावत इस्लामी ने खिदमत जो कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और दूसरी दुनिया में, हर घर में जाके उनको राशन दे रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, नमाज की तरफ लेकर आ रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए जो है कोशिशें कर रहे हैं कि आज वबा में भी उनका ज़िक्र जो है वो कोई दबा ना सके। ये दावत इस्लामी जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में खिदमत कर रही है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इस दावत इस्लामी को पूरी दुनिया में और उजागर अता फरमाए, और हज़रत साहब की जो है उम्र में दराजी में अल्लाह तबारक ताला बरकत अता फरमाए, और उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमाए। वैसे भाई मैं आखिर पे आपसे ना एक कलाम की फरमाइश करूँगा कि जो आप अक्सर कलाम किसी महफिल में पढ़ना ज़्यादा आपका शौक़ होता है कि मैं ये कलाम पढूँ। इससे पहले मैं अपने नाज़रीन को मुखातब करके बताना चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन ये जान लें कि दावत इस्लामी वो तहरीक है जो दीन के साथ साथ दुनिया में बिला तफरीक, वैसे भाई जड़ांवाला में मेरे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि ये सुन्नी घराना है या कौन सा है, सिर्फ ये देखा गया कि ये घराना बहुत कमज़ोर है। ये नहीं देखा गया कि ये सुन्नी है या दूसरा है कोई, नहीं, ये नहीं देखा गया, ये घराना जनाब बहुत कमज़ोर है, इसकी हमने हेल्प करनी। वहाँ पर मैंने देखा कि राशन पहुँचा, वहाँ पर मैंने देखा कि उनके घरों में फिर तस्वीर नहीं खिंचवाई गई। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि ये है कि तस्वीरें नहीं खिंचवाई जाती, जिसको कुछ दिया जा रहा है उसको रुसवा नहीं किया जाता,
उसकी इज्जत नफ्स से खेला नहीं जाता। हालांकि लोग, मेरा ख्याल है कि मैं एक ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि वो 10 किलो का आटे का थैला और 2 किलो चीनी दिया करते थे और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते थे कि हमने इतने घरों में राशन पहुंचा दिया, इतने घरों में राशन पहुंचा दिया। और उन लोगों की तस्वीरें भी वो उतार के फेसबुक पर लगाया करते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। लेकिन दावत इस्लामी ऐसी कि देने वाले का चेहरा तो क्या, उसके घर की तस्वीर भी नहीं देना गवारा करते। जी और ये है कि बताते हैं कि हमने इतने लोगों में राशन तकसीम कर दिया। दावत इस्लामी ऐसी जमात है कि जिसने लोगों के ईमान महफूज कर दिए। दावत इस्लामी ऐसी जमात है कि जिसने चोर डाकुओं को पकड़ कर इमामत के मसले पर खड़ा कर दिया। आप भी दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक हो जाइए। दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा हर जमात को बाद नमाज मगरिब हर शहर के फैज़ान मदीना में होता है। आप उस इज्तिमा में ज़रूर शिरकत किया कीजिए। मदनी चैनल अपने घर में चलाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपका बच्चा बच्चा नेक नमाजी और आशिक़ रसूल होगा। वैसे भी आखिर पर सवाल ये है कि आप कौन सा कलाम ज़्यादातर आपकी कोशिश होती है कि मैं ये महफिलों में पढ़ूं, और अब भी हम वही सुनना चाहेंगे। शान भाई, आज जो वक्त जा रहा है, एक वबा का, कोरोना वायरस, और इस वबा से लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। और हमारी हुकूमत जो है ये कह रही है कि अपने घरों में बैठे अपनी हिफाजत फरमाएं, एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ भी ना मिलाए। हमारा ईमान है कि जिसको मौत जो है वो आनी है वो आके रहेगी। लेकिन सरकार ने भी फरमाया कि अगर एक इलाके में वबा फैल गई है, उस इलाके से दूसरा इंसान दूसरी जगह पे ना जाए। बिल्कुल तो हमें फिर भी एहतियात जो है वो ज़रूरी है, लेकिन सलाम लेने में हमें एहतियात नहीं है। क्योंकि एक दूसरे पे सलामती जो है, एक दूसरे सलाम लेना, एक दूसरे को सलामती में लेना, ये एक मुसलमानों का अकीदा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा कायम रहेगा। आइए एक कलाम मैं पेश कर रहा हूँ, और ईसान भाई इस कलाम के लिए जो है मेरी दिली ख्वाहिश होती है हर महफिल में मैं ये कलाम पढ़ूँ, और इल्तिजाइया ये कलाम है, समात कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साया नजरे करम दी कर सोने वे, साया नजरे करम दी कर सोने वे, सुन अर्ज मेरी सुन अर्ज मेरी, साया नजरे करम, साया नजरे करम दी कर सोने वे, साया नजरे करम। मैं ततड़ी दिया सुन ले सदावां, मैं ततड़ी दिया सुन ले सदावां, शान तेरी तो वारी में जावा, मैं ततड़ी दिया सुन ले सदावां, शान तेरी तो वारी में जावा, मैनू नजरां च अपनी रख सोने वे, मैनू नजरां च अपनी रख सोने वे, सुन अर्ज मेरी सुन अर्ज मेरी, साया नजरे करम। लाल मावा दिया जोली च पा दे, लाल मावा दिया जोली च पा दे,
झोली च पा दे, दुखड़े जग दे सारे मिटा दे, लाल मावा दियां झोली च पा दे, दुखड़े जग दे सारे मिटा दे, मेरी खाली झोली भर सोने वे, मेरी खाली झोली भर सोने वे, सुन अर्ज़ मेरी सुन अर्ज़ मेरी साया नज़रे करम। और मकता है ज़िया साहब लिखते हैं, ज़्यादी जिंद ते जान तुसी हो, 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 सदा दीन ईमान तुसी हो, ज़्यादी जिंद ते जान तुसी हो, उसदा दीन ईमान तुसी हो, त्याडे हुंदे कादा डर सोने वे, त्याडे हुंदे कादा डर सोने वे, सुन अर्ज़ मेरी सुन अर्ज़ मेरी साया नज़रे करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साइया नज़र करम दी कर सोनिया वे, लजपाल परीत नु तोड़ते नहीं, जिंदी बाह फड़ते उन्हों छोड़ दे नहीं। नादरीन, आखिर पे यही कहूँगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिश्ता मजबूत कर लीजिए। हर वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहिए, नाते पढ़ते रहिए, इश्क रसूल को बढ़ाते रहिए। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको नई नई शख्सियात से मिलवाते रहेंगे, नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, नए नए मसाइल उजागर करते रहेंगे। और जड़ावाला की बहुत सारी शख्सियात अभी बाकी हैं जिनके इंटरव्यूज़ करके हम उनकी इंशाअल्लाह शख्सियात को आपके सामने रखते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। जब तक मैं कोई नई वीडियो, नई शख्सियत, नया इशू, नया मौजू लेकर दोबारा हाज़िर नहीं होता, तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब का हामी नासिर हो, दुआओं का तालिब हूँ। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।